Hello students, how are you all? I hope you are doing well. I am your English grammar teacher Sila. आज हम पढ़ेंगे आपका 11th चैप्टर जो है verbs, tenses. Let's get started. Verb. The words that denote actions are verbs. Verbs tell us what someone is doing, was doing or will be doing. A verb usually follows the subject as she is happy, they were weak. In most questions, the verb is am, are, was, were, has or have come in the beginning of a sentence as is he sad? Were they going? A verb may indicate the present and past or even future tense. Tenses. When a verb denotes an action done in the present time, it is said to be in the present tense. When a verb denotes an action done in the past time, it is said to be in the past tense. When a verb denotes an action done in the future time, is said to be in the future tense. पहला देखिए, present tense. It tells you about an action that takes place repeatedly. It also tells about an action that is happening now. We use is, am, are or the first form of a verb, such as go, sit and eat, to write or speak a sentence in this tense. Here is the table to show the use of is, am and are. यहाँ पर आपको 3 कॉलम्स दिए हैं, पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल. देखिए, फर्स्ट पर्सन, आई एम और आई एम, वी आर और वी आर. सेकेंड पर्सन देखिए, यू आर और यूर, यू आर और यूर, ही इज और शी इज. स्टूडेंट्स यहाँ पर शी इज लिखा है, यहाँ पर अगर ही की बात हो रही है तो हम ही इज लिखेंगे, एस नहीं आएगा, तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा. दे आर और दे आर. आगे देखिए, थर्ड पर्सन, शी इज और शी इज, इट इज और इट्स, दे आर और दे आर और दे आर. Likewise, use has when the subject is singular. When the subject is plural, have is used. With I and you, also have is used. Examples: Rani has a big home. He, she has a big home. We, they, you have a big home. When two singular nouns are joined by and we used have or are with them. Example: Sagar and Mayank are neighbors. Raj and Amit have gone away. पहला देखिए. Now study the sentences used to describe the action as shown in each picture. पहला देखिए. He is a boy. He sing a song. Second है, she is our teacher. Her name Miss Monica. She teaches us English. Present tense tells about an action that is happening now. The dog is under the tree. The tree has many branches. The dog is sleeping. Sentences used to describe the pictures above are in the present tense. That is, the verbs used are in the present tense. Note that we add s or es to the verbs if the subject is in the plural. स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंगुलर लिखा है, सिंगुलर नहीं होगा, यहाँ पे आपको प्लूरल लिखना है क्योंकि प्लूरल फॉर्म में ही हम s और es ऐड करते हैं. सेकंड देखिए, and now take note of another use of the present tense. It is used to describe a fact that is always true or an action that is repeated because of habit. पहला देखिए, the earth
revolve around the sun. Earth continuously revolve around the sun. Second देखिए, the sugar tastes sweet. It always tastes sweet. Third है, he take his breakfast in the morning. Breakfast is always taken in the morning. आगे देखिए third, has and have are used to show the ownership or possession. Here is the table to explain how they are sound. Person, singular and plural, तीन कॉलम्स आपको दिए हैं. फर्स्ट पर्सन देखिए, I have और I have, we have और we. सेकेंड पर्सन में देखिए, you have और you have और you. थर्ड पर्सन देखिए, she has, it has, they have और they have. एग्जाम्पल्स देखिए, पहला एग्जाम्पल है आपका, I have a car, it has 4 wheels. सेकेंड है, Mrs. and Mr. Garg have a cute baby. आगे देखिए, I have a lovely teddy, it has curly hair. I have a pen. B देखिए, past tense. The past forms of is, am, are, has and have, are, was, were and had, they are used to describe an action or event that had taken place in the past. देखिए, the commonly used words to indicate the time that is over, past tense, are then, yesterday, last week, last month, before, previously, the day before, long ago, etc. Now, study the sentences describing the different pictures given below carefully. The action described took place in the past. पहला देखिए, the dog was barking. I could not sleep. Past tense describes an action or event that had taken place in the past. We came by bus. It was full by passengers. There was a storm last night. It uprooted many trees. Let us now learn the use of was and were with the help of the following table. First person, I was, we were. Second person, you were, you were. Third person, he, she, was, it was, they were. Second देखिए, we often use the past tense to tell a story. To get the past form of the main verb, we used its second form as go, went, gone, do, did, done, buy, bought, bought, tell, told, told. C देखिए, future tense. It is used for an event or action that is likely to take place in the time to come. To form a verb in the future, we use shall, will plus verb. First form. Let us now study the following sentences carefully, which describes the pictures that follow. पहला देखिए, Shalabh is my brother. He will visit us tomorrow. दूसरा देखिए, the sun shines bright. It will set in the west after some hours. She is Ria. She will be there next year. There are thick clouds. It will rain soon. Will visit, will set, will be and will rain. In the above sentences are all the verbs in the future tense to indicate future time. Words like tomorrow, the day after tomorrow, coming next week or month are used. We generally use shall with the pronouns in the first person and will with the pronouns in the second and third persons.
Future tense is used for an action that is likely to take place in time to come. अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज। पहला है आपका सेक्शन ए, फिल इन ईच ब्लैंक विथ इज, एम और आर। पहला देखिए, आई डैश हैप्पी हियर। यहां पर आप लिखेंगे आई एम हैप्पी हियर। इसी तरीके से आगे देखिए। दूसरा देखिए, द चिल्ड्रन डैश टॉकिंग टू द टीचर। यहां पर आप लिखेंगे द चिल्ड्रन आर टॉकिंग टू द टीचर। थर्ड देखिए, इट डैश वेरी कोल्ड टुडे। यहां पर आप लिखेंगे इट इज वेरी कोल्ड टुडे। फोर्थ देखिए, ही डैश अ ऑनेस्ट मैन। यहां पर आप लिखेंगे ही इज एन ऑनेस्ट मैन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए की जगह एन आएगा क्योंकि हम यहाँ पर ऑनेस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एन ऑनेस्ट मैन लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप ए के बाद एन भी ऐड करेंगे। आगे देखिए फिफ्थ, वी लाइक देम बिकॉज दे डैश सिंसियर। यहाँ पर आप लिखेंगे वी लाइक देम बिकॉज दे आर सिंसियर। इसी तरीके से सिक्स्थ देखिए, आर टीम डैश रेडी फॉर द मैच। यहाँ पर आप लिखेंगे आर टीम इज रेडी फॉर द मैच। इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप करेंगे। आइए देखिए सेक्शन बी, कंप्लीट ईच सेंटेंस बाय यूजिंग हैज और हैव। पहला देखिए, आई डैश अ पेंसिल। यहां पर आप लिखेंगे हैव, आई हैव अ पेंसिल। इसी तरीके से दूसरा देखिए, माई डॉल हैज अ न्यू ड्रेस। यहां पर आप हैज लिखेंगे। इसी तरीके से तीसरा देखिए, दिया हैज अ बुक। मिस्टर कांत डैश मेनी फिश इन हिज नेट। मिस्टर कांत हैज मेनी फिश इन हिज नेट। आगे देखिए, द बर्ड्स हैव देयर नेस्ट्स ऑन दिस ट्री। सिक्स देखिए, यू डैश टू स्टे आफ्टर द क्लास टोनी। You have to stay after the class, Tony. Sagar dash a pet dog. Sagar has a pet dog. Pussy dash a rosary in hand. Pussy have a rosary in hand. C देखिए, write the short form of the colored words in the blanks. पहला देखिए, I am dash हैप्पी हियर। यहाँ पर आपको उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई एपोस्ट्रोफी एम, आई एम हैप्पी हियर। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप करेंगे। आगे देखिए सेक्शन डी, कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक विथ इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, हैव, हैज, हैड और शैल हैव। पहला देखिए, द रोज डैश रेड। यहाँ पर आप लिखेंगे The rose is red. सेकेंड है आपका, we dash going to temple। यहाँ आप लिखेंगे we are going to temple। यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट, दिव्या डैश go to Delhi next week। यहाँ पर आप लिखेंगे दिव्या will go to Delhi next week। आगे देखिए, she dash एंग्री विथ यू। यहां पर आप लिखेंगे शी इज एंग्री विथ यू। फिफ्थ देखिए, दिस हाउस बिफोर इट वॉज रीबिल्ट लास्ट मंथ हैड ओनली 2 रूम्स। यहां पर आप हैड लिखेंगे। सिक्स देखिए, द फार्मर्स डैश इन द फील्ड्स व्हेन इट बिगेन टू रेन। यहां पर आप लिखेंगे द फार्मर्स वर इन द फील्ड्स व्हेन इट बिगेन टू रेन। इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप करेंगे। आगे देखिए, fill in the blanks with the correct form of the verbs given in the brackets। पहला देखिए, the sun dash every morning। यहां पर आप rise आपको ब्रैकेट में दिया गया है, तो यहां पर आप लिखेंगे the sun rises every morning। इसी तरीके से दूसरा देखिए, these girls dash their dance lessons last week। अब यहां पर आप लिखेंगे
These girls took their dance lessons last week. थर्ड देखिए, My neighbor's dog dash at night. यहाँ पर आप लिखेंगे My neighbor's dog barks at night. फोर्थ देखिए, दिव्या dash very melodiously. यहाँ पर आपको वर्ड दिया है sing, तो यहाँ आप लिखेंगे दिव्या sang very melodiously. फिफ्थ देखिए, she dash very silly mistakes. यहाँ पर आपको make वर्ड दिया गया है, तो यहाँ आप लिखेंगे she makes very silly mistakes. यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं she made very silly mistakes. सिक्स्थ देखिए, the शताब्दी एक्सप्रेस dash आगरा late in the evening. यहाँ पर आपको रीच वर्ड दिया गया है ब्रैकेट में, तो आप यहाँ लिखेंगे the शताब्दी एक्सप्रेस reached आगरा late in the evening. सेवेंथ देखिए, some bus drivers dash too fast. यहाँ पर आपको ड्राइव वर्ड दिया गया है, उसके आगे है and dash with accidents. यहाँ पर आपको मीट वर्ड दिया गया है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं some bus drivers drive too fast and met with accidents. आगे देखिए एट, she dash the aim of story. यहाँ पर अंडरस्टैंड आपको वर्ड दिया गया है ब्रैकेट में, तो यहाँ आप लिखेंगे she understood the aim of story. इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप करेंगे. आगे देखिए सेक्शन F. Fill in the blanks with the future continuous tense of the verbs given in the brackets. यहाँ पर आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ब्लैंक्स को फिल करना है जो आपको ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए गए हैं उनकी हेल्प से. पहला देखिए, निशा एंड आई डैश द टेबल्स इन द हॉल. यहाँ पर अरेंज आपको वर्ड दिया है, तो यहाँ आप लिखेंगे निशा एंड आई विल बी अरेंजिंग द टेबल्स इन द हॉल. सेकेंड देखिए, वी डैश हर एट सदर बाजार दिस इवनिंग. यहाँ पर आपको मीट वर्ड दिया है, तो यहाँ आप लिखेंगे वी विल बी मीटिंग हर एट सदर बाजार दिस इवनिंग. इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप करेंगे. आगे देखिए सेक्शन जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन वर्ब. स्टूडेंट्स, वर्ब क्या होता है? एनी एक्शन वर्ड जिससे हमें ये पता चले कि वो चीज कब हुई है, वो एक्शन कब हुआ है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, उससे हमें पता चलता है. सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिफाइन प्रेजेंट टेंस विथ टू एग्जांपल्स. प्रेजेंट टेंस को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हमें दो एग्जांपल से हम क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट टेंस यानी कि जो चीज हो रही हो. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रही हूँ. यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं. इसी तरीके से थर्ड देखिए, डिफाइन पास्ट टेंस विथ टू एग्जांपल्स. पास्ट टेंस यानी कि पास्ट यानी कि जो चीज हो चुकी है, तो हम लिखेंगे आई हैड माई फूड, यानी कि मैंने अपना खाना खा लिया था. बाकी आप लिख सकते हैं शी लेफ्ट द रूम, यानी कि उसने रूम छोड़ दिया. आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन फ्यूचर टेंस विथ टू एग्जांपल्स. फ्यूचर टेंस यानी कि जो फ्यूचर में होने वाला है, तो फ्यूचर टेंस के लिए आप कह सकते हैं आई विल बी गोइंग विथ सागर, यानी कि मैं सागर के साथ जाऊंगी. इस तरीके से आप दूसरा लिख सकते हैं टुडे वी विल गो टू टेम्पल, यानी कि आज हम टेम्पल जाएंगे. अब देखिए सेक्शन एच, सर्कल द एक्शन वर्ब एंड राइट पास्ट, प्रेजेंट एंड और फ्यूचर. यानी कि आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें से आपको एक्शन वर्ब को सर्कल करना है और बताना है कि वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है. पहला देखिए, राजा लाइक्स मूवीज. यहाँ पर लाइक्स जो है वो आपका एक्शन वर्ब है, तो आप लाइक्स वर्ड को सर्कल करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे कि वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है. तो यहाँ पर आप प्रेजेंट लिखेंगे क्योंकि ही स्टिल लाइक्स मूवीज, तो यहाँ पर आप प्रेजेंट लिखेंगे. सेकेंड देखिए, वी विल वॉच अ मूवी. ये हो गया आपका फ्यूचर. विल, यहाँ पर विल जो है वो आपका एक्शन वर्ब है और ये फ्यूचर में है क्योंकि अभी इन्होंने देखी नहीं है मूवी, अभी ये देख नहीं रही है, देखेंगे. इसी तरीके से तीसरा देखिए, यू विल बी लेट.
ये भी आपका फ्यूचर में ही आएगा। विल, यानी कि आपका विल जो है वो एक्शन वर्ब है और विल आपके लिए फ्यूचर भी है, तो यहाँ पर आप साइड में फ्यूचर लिखेंगे। इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्ब्स टेंसेस में समझ में आए होंगे, उनके टाइप्स और फॉर्म्स समझ में आए होंगे। एक्सरसाइज हम लोगों ने डिस्कस की है, बाकी की आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।